Hello students, welcome back to my channel. Today I am taking class for CBSE students life processes continued. The next part, that is transportation in human beings. As you know already, earlier we have studied the respiration, how the exchange of the gases takes place in the lungs. Now this gas which is taken from the lungs, how it is transported to the different parts of the body. That is how the transportation of the gas, digested food materials, respiratory gases, waste products, body secretions, regulation of the body temperature, water balance in the body, how does it takes place? Now this transportation in the human beings, it takes place through the blood. Blood is a fluid that is flowed in the blood vessels, and blood is pumped through the structure that is the heart. Heart, it is one of the structure present inside in your thoracic cavity. If you close the fist, this is the fist, this is the shape of the heart. This is the shape of the heart, this one. Shape of the heart, you had it here like this. It is 12 centimeter in the length, 9 centimeter in the width. Heart is covered externally by a membrane that is known as pericardial membrane. In between the heart wall and the pericardial membrane, in this space, the fluid is filled that is known as pericardial fluid. It protects the heart from external shocks and injuries. When we say the heart, just you see the structure here, heart. It consists of four parts, two auricles and two ventricles. They are the two auricles and they are ventricle. Blood, this is from the right side, left side, it is the right side. Right, as I am sitting here, it is opposite of there like this. Means this is our right side, this is your left side. Blood from the right side and the left side does not mixes. Right side, deoxygenated blood or impure blood is there. Left side, oxygenated blood or pure blood is there. Blood is collected from different parts of the bodies through two vena cava, the superior vena cava and posterior vena cava. Both these veins, two superior vena cava and posterior vena cava, this one, that is the vena cava inferior, means posterior part of the body, and superior from the anterior part of the body. Blood is collected from these two and pours, it is the right auricle. In this right auricle, blood is poured, collected. Now this collected blood from right auricle passes into the right ventricle through auriculoventricular aperture, which is present, which is guided by the tricuspid valve. And these are the muscles, dotted line structure I have shown, muscles chordae tendineae, by which the regulation of these valve occurs. See, heart is a hollow muscular structure. Inside chambers are there. Walls of the heart made up of cardiac muscles that you know already. Here, main heart, it is divided, the main heart wall. Ventricles, they are thick walled. Auricles, they are the thin walled. Because auricles, the blood is poured inside the heart. वेंट्रिकल ऑरिकल्स में ब्लड बॉडी पार्ट से अंदर आता है, तो इसमें कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती, और वेंट्रिकल से ब्लड ऊपर पंप करना पड़ता है. यहाँ से ब्लड जब राइट ऑरिकल से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये दो पार्ट्स हैं, ये दो लंग्स में जाता है, एक यहाँ पर और ये जो ये यहाँ पर ये डॉटेड दिखा है, ये दो लंग्स होते हैं, राइट और लेफ्ट लंग्स में जाता है. लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ, उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर पल्मोनरी वेन, ये दो पल्मोनरी कॉमन ओपनिंग, जैसे ये दो कॉमन ओपनिंग्स यहाँ ब्लड पूरे बॉडी पार्ट से यहाँ राइट ऑरिकल में है, इसी तरह से दोनों लंग से ब्लड जो है लेफ्ट ऑरिकल में है. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है. जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियल में आया पल्मोनरी वेन से, जो पल्मोनरी वेन कहाँ, लंग्स से आती है, लंग्स से पल्मोनरी वेन के जरिए आया और ये लंग्स में गया, ये पल्मोनरी यहाँ पर ये लंग्स में ये गया, ये लंग्स में गया, ये नहीं है, ये नहीं है, यहाँ से ये लंग्स
और इन दोनों लंग से जो है ब्लड वापस यहाँ पर आया, ये आया लेफ्ट एट्रियम, इट इज द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम इट इज गार्डेड, और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दोनों सेपरेट होते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर से। ये ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर एपर्चर लेफ्ट साइड इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड, दो वॉल्व फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ओपन होते हैं। ये ट्राइकस्पिड, इसमें 3 फ्लैप्स होते हैं, जो कि 3 फ्लैप्स ऐसे ये होते हैं, ये ये 3 फ्लैप्स होते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये इसको एपर्चर, और यहाँ पे 2 फ्लैप्स होते हैं, इसको यू कंट्रोल, ऐसे इसको बंद करते हैं। तो ये फ्लैप्स हुए, यहाँ से ब्लड आया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटिक आर्क में गया, ये यहाँ से अंदर से हो करके यहाँ से निकलती है और हार्ट के पीछे से होते हुए एरोटिक आर्टरी जाती है, ये एरोटिक ट्रंक होता है। ये एरोटिक ट्रंक बाइफरकेट होती है 2 पार्ट्स में, राइट और लेफ्ट। राइट और लेफ्ट राइट पार्ट्स वाले बॉडी होती है, और इसी से एक ऊपर जाती है जो हेड में जाती है, एक आर्म्स में जाती है, एक बॉडी के नीचे पार्ट्स में जाती है, तो ये वहां से ब्लड सप्लाई करती है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, जो ब्लड वेसल्स एंटरिंग द हार्ट, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा और करोनरी आर्टरी। करोनरी आर्टरी जो ब्लड हार्ट की जो ये वॉल्स हैं, हार्ट की वॉल्स में जो ब्लड सप्लाई होता है वो करोनरी आर्टरी के थ्रू होता है। और ब्लड वेसल्स लीविंग द हार्ट, पल्मोनरी आर्टरी, ये जो लंग्स में ले जाती है, और सिस्टमिक एरो का ये जो होती है वॉल्स, ये ब्लड, ये एरोटा बल कहाँ, एक तो ये पल्मोनरी आर्टरी के ब्लड लंग्स में गया, और ये पल्मोनरी एरोटा जिससे कि बाहर गया, लिविंग द हार्ट। बाइकस्पिड, बाइकस्पिड वॉल लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होते हैं, ट्राइकस्पिड वॉल राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल्स के बीच में होते हैं। सेमिलरी पल्मोनर वॉल पल्मोनरी एरोटा में होते हैं, जहां से ब्लड लंग्स में जाता है, और एरोटिक ब्रांच में होते हैं ये, जहां से ब्लड जो है एरोटा में सप्लाई होता है। ये सेमिल्यूनर अर्धचंद्राकार जैसे कहते हैं, हाफ मून शेप, तभी इनको सेमिल्यूनर बल्ब, सेमिल्यूनर पल्मोनरी वॉल्व, एरोटिक सेमिलर, यहाँ पर पल्मोनरी सेमिल्यूनर वॉल्व और यहाँ पे एरोटिक सेमिल्यूनर वॉल्व होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। नाउ द बाइकस्पिड ट्राइगल, हार्ट की जो ब्लड जो है इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स 3 तरह की होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। आर्टरीज दे कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट लंग। लंग्स में ब्लड जो है वो पल्मोनरी वेन में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करती है, क्योंकि लंग्स में ब्लड ऑक्सीजनेट होता है, और वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वेन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट में जाता है एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन में चूंकि ब्लड ऑक्सीजनेट लंग्स में होता है, तो इसलिए पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हार्ट में आता है। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 बार हार्ट के थ्रू फ्लो होता है, इसलिए इसे कहते हैं डबल सर्कुलेशन। हार्ट से ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्लड हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया, लंग से वापस हार्ट में आया, हार्ट से फिर बॉडी पार्ट्स में ब्लड। तो देखिए 2 बार ब्लड जो है हार्ट में जा रहा है। वन साइकिल इज दिस, हार्ट टू लंग्स, लंग्स बैक टू हार्ट। वन साइकिल फ्रॉम द हार्ट टू द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स एंड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो ये 2 साइकिल बनते हैं, इसलिए इसको हम डबल सर्कुलेशन कहते हैं, कि पूरी बॉडी में ब्लड का एक सर्कुलेशन कंप्लीट करने के लिए इसमें 2 साइकिल्स होते हैं। चूंकि एक सर्कुलेशन कंप्लीट 2 साइकिल्स होते हैं, इसलिए इसको हम डबल से। अब देखिए, मान लीजिए ब्लड और कैपिलरीज क्या होती है, जो आर्टरीज और वेन्स को, जैसे ये है आर्टरी, ये है वेन, ये है आर्टरी, ये है वेन। अब ये मेन पार्ट में डिवाइड हुई, ये मोटे वेन फर्दर, तो ये हो गई आर्ट्रियोल। अब ये डिवाइड होती है छोटे छोटे ब्रांचेस में, तो ये है कैपिलरीज, ये है आर्टरी वेन। कैपिलरीज आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है, और इसके जो मेजर ब्रांचेस होते हैं इसको हम कहते हैं आर्ट्रियोल। आर्ट्रियोल ज्वाइन से, अब वेन्स को कहते हैं वेन्यूल्स, ये वेन्यूल्स होते हैं, ये आर्ट्रियोल्स होते हैं। आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स ज्वाइन करके कैपिलरी बनाते हैं।
कैपिलरी टिश्यूज में अंदर धसी होती हैं, इससे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता है. I hope the structures, transportation, how it takes place is clear. Next video, I will discuss your question answer. Then rest of you get your clear things over there. Thank you. Again, we will meet in the next video. Don't forget to see the second part of transportation so that you can get your complete knowledge of it.